السلام علیکم پیارے طالب علموں، آج ہم 8th کلاس کے چھٹے چیپٹر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جو ہمارا ہے اجزائے ضربی اور ہمزاد مسابقتیں۔ اجزائے ضربی اور ہمزاد مسابقتوں کے لیے سب سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ وہ کیا ہوں گی آئیے ہم ان کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہے بیسک فارمولے، بنیادی جو فارمولے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ہمیں کس کی ضرورت پڑے گی۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا فارمولہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارا پہلا فارمولہ جس کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہے اے جمع بی کا مربع۔ اے جمع بی کا مربع یعنی کہ اے جمع بی کا اسکوائر از ایکول ٹو اے کی 2 جمع 2 اے بی جمع بی کی 2۔ پہلا فارمولہ یہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا فارمولہ جو ہوگا ہمارا وہ یہ ہوگا اے مائنس بی کا مربع یعنی کہ اے مائنس بی کا اسکوائر اے کا مربع مائنس 2 اے بی جمع بی کی 2۔ دوسرا فارمولہ یہ ہوگا ہمارا پیارے بچوں۔ اس کے بعد جو ہمارا تیسرا فارمولہ ہوگا وہ یہ ہوگا اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر۔ اے کا مربع نفی بی کا مربع برابر ہے اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر از ایکول ٹو اے پلس بی، اے جمع بی انٹو اے مائنس بی، یہ ہوگا۔ ان کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم جو اور بنیادی چیز یہاں پہ سیکھیں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایکس اسکوائر پلس 1 اوور ایکس اسکوائر اور ایکس کی 4 پلس 1 اوور ایکس کی 4 کی قیمت معلوم کرنی ہے، کی قیمت معلوم کرنی ہے۔ اگر ہمیں ایکس پلس مائنس 1 اوور ایکس کی قیمت دی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، کی قیمت دی ہوئی ہو تو ہم اس کی قیمت معلوم کر سکیں گے۔ آئیے پیارے بچے، سب سے پہلے ہم جو ہمارا فارمولہ نمبر 1 ہے ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یہ کیسے آیا ہے اس طرح، یہ ہمارے پاس ہے اے پلس بی کا مربع، تو ہم نے کرنا کیا ہے، اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کیسے کرنا ہے پیارے بچوں، اوپن اس طرح کرنا ہے کہ پہلے کا مربع، پہلا ہمارا کیا ہے اے ہے جمع 2 ملٹیپلائی یعنی کہ اے بی، اے ملٹیپلائی بی۔ اس کے بعد جس طرح میں نے اے کا مربع کیا تھا یعنی کہ پہلے کا مربع، اسی طرح دوسرے کا مربع بھی کروں گا، جمع بی کا مربع، یہ آ گیا ہے۔ اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں، آگے لے کے جاتے ہیں، کہاں تک جاتا ہے، یہاں پہ اے کی پاور 1 ہے یعنی کہ ایسا، یہاں پہ اے کی پاور 1 ہے، یہ تو 1 کے ساتھ 2 ملٹیپلائی ہوگا تو کیا آئے گا اے کی پاور 2 جمع یہاں پہ 1 ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ 1 اور 1 2 ایکم 2 2 ایکم 2، یہ جمع کا 2 آئے گا، اے کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو کیا آئے گا اے بی آئیں گے، کیونکہ اگر یہاں پہ ہمارا متغیر ایک جیسا ہوتا تو ان کی طاقت جمع یا نفی ہو جاتی، کیونکہ ہمارے جو متغیر ہیں یہ مختلف ہیں، ان کی طاقت جو ہے جمع نفی نہیں ہوتی، یہ دونوں ہی ویسے رہتے ہیں۔ پلس بی اسکوائر، بی اسکوائر اور اے اسکوائر کو تھوڑا سا میں آپ کو لوگوں کو سمجھا دوں، یعنی کہ بی کی پاور 2 ہے۔ پاور کیا کہتی ہے، پاور یہ کہتی ہے کہ اس کو بی کو 2 بار آپس میں ضرب دیں، یعنی کہ بی کو 2 بار آپس میں ملٹیپلائی کریں، بی ملٹیپلائی بی، بی ملٹیپلائی بی، جب یعنی کہ متغیر سیم آپس میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ پلس یا مائنس ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ جمع 1 ہے تو جب بی کو ملٹیپلائی کریں گے تو بی آئے گا، تو ان کی پاور کیا ہوگی، طاقت کیا ہوگی، جمع ہو جائے گی۔ اسی طرح اے کا بھی ایسے عمل تھا۔ یہ ہمارا فارمولہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم دوسرے فارمولے کے اوپر۔
दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी का मुरब्बा। इसको भी पहले फार्मूले के साथ हल करना है, यानी कि पहला हमारे पास ए है, ए का मुरब्बा जमा 2 को ज़र्ब दे पहला, दूसरा अब हमारे पास माइनस बी है, दूसरा हमारे पास अब क्या है माइनस बी है प्लस माइनस बी का मुरब्बा। अब पहले फार्मूले की तरह इसे भी हल करना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, साइन का ख्याल रखना है। ये ए की पावर 2 आएगी, जमा जमा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 जमा रहेगा, जब जमा यानी कि नफी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन तब्दील हो जाता है, ये साइन तब्दील हो जाता है। कैसे हो जाता है, यानी कि अगर हम रियादी के कानून के तहत जमा को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो ये नेगेटिव में चला जाता है। ये किस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव में चला जाता है। अब हमारी जो कंडीशन थी ये थी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव के साथ चला जाता है। ये क्या आएगा 2ab। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास नेगेटिव b है। नेगेटिव b को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि नेगेटिव b की पावर 2 है, इसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो यानी कि माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी जब नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो किस में तब्दील हो जाते हैं बेटा, पॉजिटिव में, यानी कि जमा में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगी b की पावर 2, इनकी पावर जमा हो जाती हैं, ये आएगा जमा b की पावर 2। बेटा अब दूसरा फार्मूला हल हो गया, उसके बाद है तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, तीसरा फार्मूला ये है हमारे पास ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, यानी कि ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। इसको हमने हल करना है। किस तरह हल करना है, आपके पास 2 चीजें होंगी, यानी कि ए प्लस बी एक दफा जमा में, यानी कि एक दफा नेगेटिव ए इंटू ए माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, आपको यही चीज मिलेगी। आइए हम चेक करते हैं। पहले हमने क्या करना है, यानी कि ए इन सब के साथ ज़र्ब खाएगा या ज़र्ब होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ए को इन सब के साथ। ए पहले ए के साथ मल्टीप्लाई होता तो क्या आता है, ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, ये आ गया। अब ए की बारी है, जमा लगाना है आपने। अब ए की बारी है माइनस बी के साथ, ए मल्टीप्लाई माइनस बी। अब बी की बारी है, आपने यहाँ पे जमा लगानी है, जमा बी जमा ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, बी मल्टीप्लाई जमा ए। अब जमा बी की माइनस बी के साथ यहाँ पे जमा लगानी है, जमा बी मल्टीप्लाई माइनस बी। बेटा अब ये आ गया आपके पास यहाँ तक, तो आपने क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर 2। मैंने पावर 2 के बारे में आपको बता दिया है पहले से भी। अब ये हमारे पास क्या आता है, जब ए बी माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई यानी कि ए इंटू ये आएंगे माइनस ए बी जमा ए बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएंगे, ए बी जमा बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, ये होता नेगेटिव है, लिहाजा इसकी जो है पावर जमा हो जाती है। अब बेटा आए नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या होगा, ए की पावर 2 जमा नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, ये क्या आएगा, ए बी जमा जमा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जमा ए बी, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा बी स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है ए बी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ए बी है, ये क्या होंगे, काट जाएंगे यानी कि क्रॉस हो जाएंगे, जमा माइनस हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बाकी रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका दूसरा फार्मूला आ गया, ये आपका तीसरा फार्मूला आ गया, और यानी कि तीसरा फार्मूला दूसरा फार्मूला सॉरी ये पहला फार्मूला, ये आपके बेटा फार्मूले आ चुके हैं। अब हम इन फार्मूलाज के तहत सवाल हल करेंगे। आइए हम उनके बारे में सीखते हैं कि हमने कौन से सवाल आगे इन फार्मूलों के लिहाज से हल करने हैं। हम अब जो हमारे अगले फार्मूले हैं उनके बारे में सीखते हैं। पहला हमारा फार्मूला है a प्लस बी।
जो हमारा पहला फार्मूला है a प्लस बी, हम इसके हवाले से सीखेंगे। आइए हम इसकी कोई एग्जांपल करते हैं। तो बेटा कौन सी एग्जांपल करते हैं, तो आइए हम कोशिश करते हैं इसको हल करने की। जो हमारे पास हमारे पास है 107। तो हमने करना क्या है, 107 का मुरब्बा लेना है। 107 का मुरब्बा लेना है। 107 का मुरब्बा हमने लिया है। तो 107 का जब मुरब्बा लिया है तो अब इसी मुरब्बे को आपने लिखना है। 107 का मुरब्बा, तो इसको आपने कन्वर्ट कर देना है, यानी कि 100 जमा 7, 100 प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये देखें बेटा, ये जो आपका पहला फार्मूला था, ये पहला फार्मूला इसकी तरह सेम हो गया, यानी कि 100 जो है आपका 100 जो है एक ही जगह पे है, और 7 जो है ये बेटा बी की जगह पे है, ये बी की जगह पे है। आइए हम इसको हल करते हैं इसी लिहाज से बेटा। तो होगा क्या हमारे पास, तो हम नीचे इसको हल करते हैं उसी फार्मूले के तहत। पहले का मुरब्बा प्लस 2 मल्टीप्लाई पहला, यानी कि ए बी, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 7, याद करते हैं 7 को, जमा 7 यानी कि 7 का मुरब्बा। इसको आगे ओपन करते हैं तो क्या होगा, जब हम 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10,000 आ जाता है। जमा अब 100 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 700 होगा। 700 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1400। जमा जब 7 का मुरब्बा है तो बेटा 7 का मुरब्बा यानी कि 7 की पावर 2 क्या कहती है, 7 की पावर 2 ये कहती है कि 7 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करो। जब आप 7 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है, 49, 49। ये हमारे पास क्या आ गया, 7 की पावर 2 49 आ गया। अब हम इसको जमा करते हैं, देखें क्या आएगा, यानी कि 9 4 4 और उसके बाद ये 9 4 4 आ गया। उसके बाद ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, ये अब हो गए हैं। तो ये क्या आएगा, ये 1 आएगा। जमा करते हैं तो 11,449 हमारे पास ये आंसर आ गया है। ये तो इस फार्मूले के तहत है। और अब हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले को एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं। आपके पास बिलफर्ज क्या है, आपके पास है 47 का आपने क्या करना है, मुरब्बा लेना है। 47 का मुरब्बा लेना है तो इसको आपने फिर दोबारा कन्वर्ट कर देना है किस में, यानी कि 15 दूसरे फार्मूले को हल कर रहे हैं, 50 - 3 का मुरब्बा। अब हमारे पास ये दूसरा फार्मूला आ गया है, यानी कि ये 50 जो है ए की जगह पे है और 3 जो है बी की जगह पे है। आइए हम इसको हल करते हैं। 50 - 3 का मुरब्बा, पहला हमारे पास क्या है, 50 है, इसका मुरब्बा जमा 2 मल्टीप्लाई, पहला क्या है 50 मल्टीप्लाई -3 जमा मल्टीप्लाई -3 का मुरब्बा, इसका स्क्वायर। अब 50 को जब हम 50 के साथ ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 2500 आएगा। जब 50 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, +2 - 150 जमा ये क्या आएगा, 3 की पावर -3 की पावर अब आ गया हमारे पास 2। तो क्या होगा, यानी कि -3 मल्टीप्लाई -3, तो क्या आएगा, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या जमा में तब्दील हो जाएगा, यानी कि नफी के साथ ज़रब करते हैं तो क्या आ जाता है, जमा में तब्दील हो जाता है। तो 3 या 9। अब जो है हमारे पास ये क्या आ गया है, 3 या 9 आ गया है। ये हमारे पास 2500 हुआ है। जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जमा को नफी के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये नफी के साथ चला जाता है। 150 को 0 10 3 300 आएगा जमा 9। अब आपने क्या करना है, 25 पहले जमा का अमल करना है तो क्या आएगा, 2509 आएगा।
माइनस 300, जब 2509 में से आप 300 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2209 आएगा। ये आपका आंसर है बेटा। आपने ये दूसरे फार्मूला इस तरह हल करना है। जो तीसरा फार्मूला है मैं आपको आइए उसको सिखाता हूँ कि हम तीसरे फार्मूले को किस तरह हल करते हैं। आइए आगे हम चलते हैं, अपने हिसाब किताब में कैसे हल करेंगे, तीसरे फार्मूले को किस तरह ला सकते हैं। तो आइए अब हमारे पास जो है 107 मल्टीप्लाई 93, 107 मल्टीप्लाई 93, 107 मल्टीप्लाई 93, 107,093। तो इसको हमने उसी फार्मूले में तब्दील करना है, वो कैसे करेंगे। तो आइए हम इसको कैसे शिफ्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि 100 जमा 7 इंटू, अब ये 100 हो गया, 107 हो गया, उसके बाद इंटू ये हमारे पास होगा, क्या होगा, 100 माइनस 7। जब यानी कि 100 के साथ 7 को जमा करते हैं तो 107 आ जाता है। जब 100 में से 7 नफी करते हैं तो 93 आ जाता है। ये सेम बने। तो अब ये देखें, जो ये सिचुएशन है हमारे यहाँ पे, ये हमारे इसी फार्मूले की तरह है, देखें। तो आइए हमने क्या करना है, यानी कि a की जगह 100 को रखना है और a स्क्वायर की जगह पे 100 को रखना है और b स्क्वायर की जगह पे 7 को रखना है हमने। तो हमारे पास क्या होगा, b स्क्वायर हमारे पास जो है, आइए हम इसको हल करते हैं, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह पे, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रखना है, 100 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो अब हमने जब 100 को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 10,000। जब हम 7 की पावर 2 लेते हैं, वो पहले मैं समझा चुका हूँ, तो क्या आता है, 49 आता है। अब हमने इसको क्या करना है, नफी करना है। 10 में से 9 जाए 1, यहाँ पे 9 में से 4, यानी कि हाथ से लेते हैं हम, तो आएगा हमारे पास 9 में से 4 जाए तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे 9 बाकी है और यहाँ पे भी 9 बाकी है। ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, सॉरी दोबारा देख लें। 10 में 9 जाए 1, 9 में से 4 जाए 5, 9 का 9, ठीक है। ये हमारा सवाल है। अब ये तीसरा हमारा जो फार्मूला था कि हम अपने हिसाब किताब में इसको कैसे ला सकते हैं, पहले को कैसे ला सकते हैं, दूसरे को कैसे ला सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये हमारा टॉपिक आज का समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा आयसल होगा वो हम ये हल करेंगे। अगर यानी कि हमारे पास x प्लस 1/x की कीमत हो तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x² और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की हम कीमत मालूम कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपने तैयार कर रहना है, हम इसको हल करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। तो आपने करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी ज़रूर करना है, ताकि आगे आने वाला जो हमारा लेक्चर का नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।